अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं इदराक न्यूज़। आइए डालते हैं आज की ताज़ा खबर पर एक नज़र। जैसे ही बना हुआ भाई इधर से यहाँ ठहरो आप, यहाँ ठहर जाओ, यहाँ ठहर जाओ, चैन बना हुआ अंदर चैन बना हुआ जरा ठहरो जी, उधर से चलो, साहब आ रहे हैं। एक मिनट नहीं आप वैसे झटना पकड़ना हजारों का ये थोड़ा सुधर के जरा हट जाइए आप लोग सामने से तो आपके साथ ही करा साहब आ गए पंचायत जल्दी कर देना हेलो भाई वो अवार्ड ले लेके आओ, पास सामान ले लेके आओ, पूरा लेके आओ। बड़े ये दो ये चिलम है गाँव में हंसना पूरे गाँव में मूसापेट गाँव में ये दस्त करते थे। ये गाँव में हर घर से गवर्नमेंट ऑफिस में जगह काम कर गए तो 200 घर हैं। आज भी हर एक को लग रही है गवर्नमेंट 100 एक बोल 2 या 3 पूरे हैं। तो सिंगापुर गाँव में क्या करें, वो दौर में योगी हम लोग के साथ बोली योगी बोल सकते उसको बुला के बोले फोटो लेना ले फोटो वीडियो नारे तकबीर, नारे रिसालत। साहब को स्टेज पे करेंगे, बोलाओ अवार्ड दो। चलो मैं ले फोटोज वीडियोज ले लो, ये लो, ये भी पकड़ लो। जरा सामने से हटे तो नहीं चलती किसी की वाला ही भुलवा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अनवर फजल साहब की गुजारिश करता हूँ हाथ साथ में मोमेंट भी दिया जा रहा है।
آج کے مہمان مقرر حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سیف اللہ صاحب حبیب اللہ صاحب محفل میلاد کل ہو گئی ہے علیہ کتاب جو ہے نا جس کے مصنف حضرت علامہ مولانا مجموعہ نعت و مناقب ہے ڈاکٹر ریاض خواجہ صاحب قادری حکم شرفی والصلاة والسلام على رسوله نبی الأمی الکریم وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال الله تعالى في كلامه القديم والفرقان المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أولياؤه إلا المتقون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى من عاد لي وليا فآذنت له بالحق او كما قال. اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام اور مشائخ اعظام وعزیز سامعین و سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز سامعین و سامعات، گزشتہ جناب میرے استاد محترم بلکہ ہم سب کے استاد محترم کو سماعت فرما چکے ہیں، انہی کی پڑھائی ہوئی چیزوں کو، انہی کی یاد دلائی ہوئی چیزوں کو، انہی کی سمجھائی ہوئی چیزوں کو میں اپنے انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا. نہ محسن صاحب کے ویسے بھرے دار آواز ہے میری، نہ ویسی قرات ہے، نہ میں زلزلہ انگیز تقریر کروں گا. آپ کی میری گفتگو ایسی ہوگی جیسے آپس میں ہم گھروں میں بات چیت کرتے ہیں. اصل واقعہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی بولا جائے وہ آپ کے سمجھ میں آ جائے اور آپ کو یاد رہے، یہ بنیاد ہے. اور ایک چیز میں رستے میں بولتے ہوئے آیا ہوں، یہ والدین جو ہے، ماں باپ، یہ ماں باپ جو ہیں، یہ ہماری بیس، بنیاد، اصل یہی ہے. بے شک اولاد کے لیے ان کا گھر پہلا مدرسہ، سبحان اللہ. نمبر 2، اور یہ ماں باپ پہلے اساتذہ. بے شک سبحان اللہ. یہ ایک چیز کو آپ ذہن میں رکھ لیں. نمبر 3، ہمارے ماں باپ جو ہمارے ساتھ کرے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. جب ہماری تسمیہ خوانی ہو گئی، بسم اللہ جب پڑھا دی گئی، تو ہمارے والدین، ہماری نانی وغیرہ لے کر اپنے پیر و مرشد کرنے گئے اور ہمارے کو مرید بنا دیا. میں جب شعور کو پہنچا یعنی بات چیت سمجھ میں آنے لگی، یہ ایسا کیوں، وہ ویسا کیوں، تو میں نے پوچھا جب ہم تسمیہ خوانی ہو گئی، پیر و مرشد کرنے لے کے جا کے مرید کیوں بنائے، تو بولے تاکہ تو ادھر ادھر نہ ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج اس کی اہمیت سمجھ میں آ رہی ہے ہمارے. یہ جو آپ کے ہاتھوں میں موبائل ہے نا، ہاتھوں میں جو موبائل ہے کس کے ہاتھ میں نہیں ہے معلوم نہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں ہے. جوان ہو کے بوڑھا ہو، بچہ ہو کے بچی ہو، دادا ہو کے دادی ہو، نانا ہو کے نانی ہو، پوتری ہو کے پوترا ہو، نواسی ہو کے نوازی ہو، ہر ایک کو ہے. حتیٰ کہ نہ مسجد میں دیکھا گیا ہے، جمعے کا خطبہ ہے، حضرت قبلہ موبائل میں دیکھ رہے ہیں. میرے سمجھ میں نہیں آیا. نہیں وہ مصلی دیکھ رہا، میں سمجھا
یہ ہمارے خطیب کا خطبہ اللہ کا لیے مقبول ہے یا نہیں ہے یہ دیکھ رہا تھا مر رہا ہوں، مگر حضرت قبلہ کچھ اور ہی دیکھ رہے. پھر دوسرا کام یہ ہوتا ہے نماز پڑھتے ہی جیب سے فوری موبائل نکالتے، یہ دیکھنے کے لیے میڈم بھی نکالتی، عورت بھی نکالتی، مردوں بھی نہیں، ادھر سلام پھیرا کے موبائل. میرے سمجھ میں نہیں آیا، شاید میں اچھا گمان کرتے ہوئے یہ بولا یہ نماز قبول ہوئی نہیں ہوئی یہ میسج آئے گا دیکھنے. واہ، یہ کیا دیوانہ پن ہے ہمارا، یہ کیا دیوانہ پن ہے بھائی. سبحان اللہ مولانا، واہ سبحان اللہ. یہ چھوڑو، اگر سچ کہہ دوں اے برہمن گر تو برا نہ مانی، تیرے صنم قدوں کے بت ہو گئے پرانے. اگر مجھے اجازت دیے تو ایک بات بولوں. سبحان اللہ. ارشاد نعرے رسالت، نعرے رسالت، فیضان جامع نظامیہ، فیضان جامع نظامیہ، فیضان جامع نظامیہ. سبحان اللہ. سنیے، غور سے سنیے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم، جتنی دیر ہمارے ہاتھوں میں موبائل رہتا ہے اگر اتنی دیر ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہو جائے پوری کی پوری دنیا آپ کے قدموں میں آ جائے. سبحان اللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. رسالت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. ابھی آپ کے نعروں کی ہوا نکالتا ہوں، ذرا دیکھیے. آپ مولوی کی تقریر کیا ہوتی معلوم ہے آپ کو؟ یہاں سے جب جائیں گے آپ، قوالی ہو گئی، حضرت کا فیض لے کے جب چلے جائیں گے، سگریٹ پینے والا کش لگا کے کیا بات بولے باپ، کیا بات بولے میاں. واقعی اگر موبائل کی جگہ قرآن ہو جائے نا، مودی تو مودی، یوگی بھی آ جاتا. سبحان اللہ. بسم اللہ. ادھر چسکا، چائے کا چسکا لگاتے ہوئے، دوسرا بولا نہیں. اور ایک بات بولے دیکھ، وہ بھی بڑے پتے کی بات بولے. واہ، ادھر سے ناس لگانے والا بھی نہیں میاں، وہ بات بڑے پتے کی بات بولے. مولوی کی تقریر چائے کی چسکی میں، سگریٹ کے کش میں، ناس کی چٹکی میں برخاست. امر ندارت، امر ندارت. مگر ایک بات بولتا ہوں، توجہ سے سنیں. اگر کوئی عالم آپ کو اپنے جلسے میں بلائے تو گنے چنے لوگ آئے نہ آئے نہ آئے. لیکن یہ اہل طریقت، اہل شریعت، یہ جو سجاد متولی ہوتے ہیں، انہوں بلاؤ نہ بلاؤ کھینچے چلے آتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. تو میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں، ان کے ہاتھوں میں جو اصلاح کا معاملہ ہے نا، یہ جو اصلاح کر سکتے ہیں شاید ہی کوئی کر سکے، بے شک. کیونکہ ان کے پاس بغیر بلائے کے بھی آ جاتے ہیں. بے شک. سبحان اللہ. انہوں اصلاح کر سکتے ہیں، عورتوں کی بھی، مردوں کی بھی، بچوں کے بھی، بچیوں کے بھی. سبحان اللہ. ایک صاحب سے پوچھا گیا یہ بچوں کی تربیت کا کیا طریقہ ہوگا، ان کی تربیت کیسے کرنا؟ تو بولے اسلامی لباس پہنا دو، بچے کو کرتا پیجامہ، سر پہ ٹوپی، بچی کے سر پہ اوڑھنی اور ڈھیلے ڈھالے کپڑے. میں ایک جگہ دیکھ کے پریشان ہو گیا، برقعے کی دکان میں جا کے دیکھا فیشنیبل برقعے. بولا یہ کیا ہوتی؟ فیشنیبل برقع ہوتا کیا؟ میں اگر کچھ بولوں گا، محسن باجا بولتے آپ شیخ الیام میں ہیں مت بولو بولتے ہو. فیشنیبل برقع ہوتا کیا ہے؟ لباس ایسا ہونا کہ جسم کی ساکھ کا پتہ نہ لگے. رکھتے کتنے ہیں، یہ ہمارے پیروں کی سائز کیا ہے، یہ سینہ کتنا ہے میرا، آپ کو یہ نہ معلوم ہونا، ایسے کپڑے پہننا ہے. بے شک. سبحان اللہ. اب وہ فیشنیبل برقع بھی، برقعے میں بھی فیشن. اب پہلے کے برقعے اتنے اچھے تھے
यूं डाल लेते तो कोई भी कुछ भी करा, ये जैसा हमारी ये धूम है ना, ये जैसा है, अच्छा फौरी डाल लेते थे। अब नोज पीस अलग, हेड पीस अलग, आइंदा चल के लेग पीस अलग, हैंड पीस अलग हो जाए। बुर्के को इतना फैशनेबल मत करना, इस्लाह होना चाहिए। मैं जो पहली बात बोला फिर उधर आता हूँ, ये वालिदैन क्या है, नौजवान नस्ल समझते पहले ये माँ बाप क्या होते हैं उसको समझ ले, क्योंकि हम देख रहे हैं नई नस्ल न्यू जनरेशन बिगड़ते जा रही है, चाहे वो लड़का हो कि लड़की हो। माँ बाप को बोल रहे हैं यू आर आउटडेटेड, आपका जमाना बीत चुका, आपका मामला खत्म हो चुका, अब हम न्यू जनरेशन हैं, ऐसे ही रहेंगे। अजीज सामिया, व अजीज तालिबात व तलबा वो नौजवानान मिल्लत व बच्चों, एक चीज आप याद रख लो अच्छी तरह दिलो दिमाग में बिठाकर, ये माँ बाप क्या होते हैं, अगर कोई खोटा सिक्का हो इनकी दुआ से चलने लगता है, खोटा सिक्का भी इनकी दुआ से चलने लगता है। मैं मिसालें दे सकता हूं मगर मोहसिन पाशा बोले मत बोल। अगर आप देखना चाहते हैं खोटा सिक्का चलता है, मैं आपके सामने बयान कर सकता हूं, मिसाल दे सकता हूं, अगर आप बोलते हैं दीजिए। आपसे जो खिताब कर रहा है, आपसे जो बोल रहा है, ये खोटा है, सिक्का ही था जो अपने माँ बाप की दुआ, असातिज़ा की इनायतों की वजह से बाजार में चल पड़ा है। सुभान अल्लाह। मान के देखो, करके देखो, अगर ये माँ बाप, ये उस्ताद आपसे राजी है, आपका सिक्का नहीं चला तो बोलता, इनको मान लो। क्यों? ये माँ बाप आपका हमारा चॉइस नहीं है। हम अपने बाप को हम मुंतखब नहीं करें, अपनी माँ को हम मुंतखब नहीं करें, अपने भाई का इंतखाब हम नहीं करें, हमारी बहन का इंतखाब हम नहीं करें। हमारे माँ बाप, हमारे बाप दादा, हमारे नाना नानी, हमारा दादा दादी, हमारा चाचा चाची, ये जो भी हमारे चाचा, हमारा मामा, हमारी खाला, ये जो भी हैं, अल्लाह का इंतखाब है। और अगर हम किसी से कट ऑफ होते हैं, ताल्लुकात तोड़ते हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्लाह, तूने इनको जो हमारा बाप बनाया, यू मेड ए मिस्टेक, आपने गलत किया। अल्लाह को ऐसा बोल सकते हैं? खत्म नहीं। ये देखो, अगर आप राबिया बसरिया हैं, आप राबिया बसरिया हैं, और अगर हमारा बाप शराबी, कबाबी, जुआरी है, मुसलमान है, तब भी आपको हमारे को उसकी इज्जत करना है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। क्योंकि अल्लाह कैद ने लगाया कि तुम्हारा बाप नेक हो, नमाजों का पाबंद हो, शमला बनता हो, शरई लिबास पहनता हो। उन्हें बोला ना, तुम्हारा बाप है बाप, बस तुम्हारी माँ है माँ, उसका एहतराम करना, उसका ख्याल करना। इसको जहन में रखें। आप आसानी से टेक इट इजी ना करें। अगर आपको यकीन नहीं है, आज से आजमा के देख लें। आप आज से आजमा के देख लें। माँ, लड़कियां माँ का पाँव दबाए, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेटे बाप का पाँव दबाए। टाइम नहीं है साहब, वक्त नहीं है। मैं देखा हूँ खिदमत गुजार बच्चों को, हाँ, कान खा रही है पतंग, न्यू मोबाइल है, बाप का पाँव दबा रही, नहीं नहीं डैड अभी आता हूँ बोल के चले गया, तो फिर आया ही नहीं। क्या कर रहा बाबा? याद रखो, बाप बुलाया, सारी दुनिया को छोड़ के चले आ गया। बोले डैड, मैं बॉस से बात कर रहा था, तो बाप बोला तेरे नबी ने नहीं बताया तेरे को बाप का हुक्म क्या है, बाप का मकाम क्या है। बॉस को बोलना,
बोले नहीं जाए, बोले नाराज हो जाता। तो बात समझा रहा है, नाराज होता ना, जरी फॉर एग्जाम्पल तू अपने बॉस से बात कर रहा है, फोन पे बात कर रहा है, हाँ, अगर उस वक्त तेरे को नंबर 1 नंबर 2 आए तो क्या करता? बोल ना, उस वक्त जोर से नंबर 1 आया या नंबर 2 आया तो क्या करता? बॉस नाराज हो जाएगा बोल के क्या करता? क्या बोल, समझ में आया क्या बोलना चाह रहा हूं? वैसी ही माँ बाप की आवाज पे लब्बैक बोल के हाजिर हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। अब भी आया साहब, नेचुरल कॉल है, बोल नेचुरल कॉल पे जा रहा हूं, तो ये चीज का ख्याल करेगा। और एक जो बात आपको कहना चाह रहा हूं, इन्हों एक हदीस पढ़े, इंदा जिक्र सालिहीन तंजिलुर रहमा। अगर नेक आदमी का जिक्र होता है तो अल्लाह की रहमतें नाजिल होती हैं। अभी सुनिए, कहाँ समझ में आया आपको? जब नेक आदमी का जिक्र होगा, जिक्र जिसका होगा गरीब नवाज, बंदा नवाज, साहिब मदार, ऐसे जैसे नेक लोगों का जिक्र होगा तो अल्लाह की रहमत नाजिल होगी। अभी आगे सुनिए, आगे सुनिए, जिक्र करने वाले की कोई खराबी भी हो सकता है, कबाबी भी हो सकता है, आलिम भी हो सकता है, हाफिज भी होता है, रिक्शा चलाने वाला भी हो सकता है, उठाई गिराई भी हो सकता है, मोबाइल लेने वीडियो लेने वाला कोई भी हो, अगर नेक आदमी का जिक्र करेगा उस पे रहमतों का नुज़ूल होगा। सुभान अल्लाह। जिक्र नेक आदमी का होना, जिक्र करने वाला कुछ भी रहो। सुभान अल्लाह। अब आप बताइए, अगर नेक आदमी का जिक्र हुआ तो रहमत नाजिल होती, पक्की बात है? अच्छी बात है। पक्की बात है, लॉक कर देना, लॉक कर दिया, पक्की बात है। अच्छा ये बताइए, जहाँ नेक आदमी होता है वहाँ रहमतों का नुज़ूल नहीं होता? बेशक होता है। तो वो जो साहिब मदार नेक है, बेशक उन पे रहमतों का नुज़ूल हो रहा है। और अगर आप वहाँ जाएंगे तो आप पे भी होगा, होगा, मगर नजर नहीं आ रहा है। यही बोल रहे हैं ना, नजर नहीं आ रहा है। सुनिए, 2 बच्चे नमाज पढ़ के निकलते हुए जाते जाते जो जूते चपला हटाते, ये जन्नतियों के, ये दोज़खियों के, ये जन्नतियों के, ये दोज़खियों के, हटाते। एक वक्त, 2 वक्त, 3 वक्त, 4 वक्त, कई वक्त समझाए बाबा नहीं बोलना ऐसा। सुबह में एक को जन्नती बोले, रात में उसको दोज़खी बोले, रात में एक को दोज़खी बोले, सुबह में उसको जन्नती बोले। कौन हमारे को दोज़खी बोले तो कबूल करेंगे हम? मारने लगे बच्चों को, मारने लगे तो एक सोशल वर्कर बोला, बाबा कहीं को मार रहे हैं आप बच्चों को? अरे क्या बोलना, जन्नती दोज़खी, जन्नती दोज़खी बोल के चपला अलग करता है। मैं औरतों से ख़ास तौर पे तवज्जो चाहता हूँ, वो ख़ास तौर पे मेरी ये बात को सुने। औरतें ख़ास तौर पे, मर्दों को तो सुनना ही सुनना, औरतें ख़ास तौर पे सुने। वो सोशल वर्कर बोला मैं कर लेता, चले गए बच्चे। वो नमाज को आ रहे थे, माँ बाप कैसी निगरानी करना है देखिए। 5 वक्त बच्चा मस्जिद को जाना, अगर मैं ये मौजू को भूल गया पकड़ के लाना में। एक साहब आके बोले, मौलाना वो हमारा बच्चा ड्यूटी को जाता जी, वो संगी की ड्यूटी है, रात में थक के मुर्दा हो जाता, पड़ जाता, फजर को नहीं उठ सकता उन्हें, फजर को नहीं उठा सकते हम, तरस आता छोड़ देते, क्या करना बताओ? तो वो मौलाना बोले एक काम करो, अगर आपके घर में आग लग गई और बच्चा थक हार के सो रहा है तो क्या करते बोलो? क्या करते? उठा के लेके खींचते हुए ले जाते, कई को जल के मर जाएगा ना, तो बोले दुनिया की आग से जलाने के लिए बचा ले रही और आखिरत की आग
क्या करना है देखिए आप, क्या कर सकते हैं औरतें, क्या कर सकती हैं बताऊंगा मैं आपको क्या कर सकती हैं औरतें। तो वो बच्चे नमाज को आ रहे थे, वो सोशल वर्कर बोले जाओ बाबा कहाँ जा रहे हैं, नमाज अभी टाइम है, खिला विला के कुछ खिला पिला के छोड़ दिया। बच्चे आए, नमाज पढ़े, नमाज पढ़ने के बाद जूतियाँ मोतियाँ देके खामोशी से निकल के चले गए। अब वो मुसल्लियों के पेट में दर्द, बोलने लगे आज क्यों नहीं बोले जन्नती दो दखी, भाई तुम ना बोले ना, नहीं बोलना बोले नहीं बोले, नहीं क्यों नहीं बोले, अरे वाह बोले तो कई को बोले, नहीं बोले तो क्यों नहीं बोले, नहीं क्यों नहीं बोले, अरे हो गया ना भाई इलाज तेरा, आज से नहीं बोलते, नहीं बोल रहे, क्यों नहीं बोले। उन्होंने बोले मैं मालूमात किया, तवज्जो चाहता हूँ, मैं मालूमात किया कि इनके वालिद नहीं है, इनकी माँ है, वो माँ इनको हलाल रोटी रोटी खिलाती है, उसकी बरकत से अल्लाह ताला ने उनकी आंखों से पर्दा हटा दिया और जन्नती दोज़खी दिख रहे थे। सुभान अल्लाह। फिर अब क्या हुआ, तो बोले आज मैं उनको हराम की खिला के लाया हूँ तो आंखों पे पर्दे पड़ गए। सुभान अल्लाह। तो वैसे ही वहाँ पर रहमतों का नुज़ूल है, लेकिन हमारी आंखों पे पर्दे पड़े सुभान अल्लाह। गुनाहों की वजह से, मगर रहमतों का नुज़ूल होता है, फैज मिलता है। हाँ, और एक बात ज़हन में रखते जाइए, एक वाक़या सुना देता हूँ, माँ क्या कर सकती है। एक घर में बच्चा पैदा हुआ तो बाप को फिक्र हो गई कि मेरे बच्चे की तरबियत कैसे होगी, कौन तरबियत करेगा, कैसा करना। तो लड़की बोली आविर मैं कर लेती हूँ, संभाल लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ तरबियत। उम्र बड़ी, बच्चा मदरसा जाने के लायक हुआ, मदरसा भेजी। मैं अपना एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं अपने बच्चे को शोबे में डालना चाह रहा था, तो मैं गया एक मदरसे को, जाके बोला ये बच्चे को मैं शोबे में डालना चाह रहा हूँ। बाबा 7 साल की उम्र होने के बाद डालना। बोला 7 साल की उम्र तक क्या करूँ? मेरे से क्या पूछा, आप खुद बोलना। नहीं क्या करूँ पूछा, मेरे से क्या पूछे मुझा, आप खुद बोलो। छोटे छोटे सूरे याद दिलाओ, खाने की दुआ, दरमियान की दुआ, दूध पीने की दुआ, घर में दाखिल होने की दुआ, घर से बाहर जाने की दुआ, मस्जिद की दुआ, ये दुआएं याद दिलाओ। क्या हमारे बच्चों को याद है? दूध पीने की दुआ आती, घर के बाहर निकलने की दुआ आती, घर में दाखिल होने की दुआ आती, घर में दाखिल होते ही बोलना अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बोले आते ही ऐसा आते जैसा जेल से छूट के आ रहे, स्कूल से नहीं आ रहे, जेल से छूट के आ रहे, चपरा सब दर्द फेंके, बैग उधर फेंके, इधर उधर करे। वही दीनी मदरसे का बच्चा कैसा आता देखो, आहिस्ता से निकाल के संभाल के किताब रखता, इस वजह से उसकी इज्जत होती। तो बच्चों को तरबियत करो ना, उसको सिखाओ ना, क्या क्या सिखाना है, खाना कैसा खाना, बाएं हाथ से पी रहा है, बाएं हाथ से पी रहा है। अब हम किसके दीवाने हैं, किसके दीवाने हैं मालूम आपको? पहले जमाने में फट्टे कपड़े पहने तो इफलास आती बोल के सुने थे। आज फट्टे कपड़े पहनना फैशन है। वो बेचारी दादी देखी, आई बा फट्टे कपड़े पहनने के फिर राय बोल के बोला। अब बाबा डरते थे दादी से, तो बेटों को डरना है, पोतों को डरना है। बाबा झुके हुए रहते थे अपनी अम्मा के सामने। बाबा को झुका हुआ देख के बाबा के बेटे भी झुके हुए, इधर आ रहे, बैठ बिठा के सुई लेके, वो 5000 के पैंट का फटा हुआ था, सीधी हो गया, पूरा सीधी। अब आप बोल रहे हमारी दादी आउटडेटेड है, ये फैशन है। अरे वो बेवकूफ,
तेरे को क्या मालूम फट्टे कपड़े पहनना घर में इफलास लाता है? आपको मालूम ही नहीं है क्या कर रहे हैं? अगर पेवन के लगे हुए पहने तो, क्योंकि हमारा हीरो पहना है ना पेवन के, हमारे अबू बकर उमर पहने सो नहीं देखी, उनकी सुन्नत नहीं, नबी की सुन्नत नहीं। बाल किसके है? बाल किसके है? चाल किसकी है? लिबास किसका है? देखिए, अगर ऐसी महफिलों में आते जाएंगे तो आपके बाल भी सही हो जाएंगे, आपकी चाल भी सही हो जाएंगी, आपकी लिबास भी सही हो जाएगी। आप मोबाइल छोड़ो, यूट्यूब से दूर हो, औलिया अल्लाह से, उलमा से करीब हो जाओ। याद रख लो, एक वाकया याद आया, वो सुना देता हूँ। एक पीरो मुर्शिद थे, उनके मुरीद नौकरी था, उनका काम करता था। उसको बोले बाबा जी ऐसे जाओ, आप जाओ। चले गया, क्या जाओ, कहाँ जाते जाओ, यहाँ न करो। चले गया तो एक वक्त हजरत को ख्याल आया पीरो मुर्शिद को कि क्या कर रहा होगा हमारा मुरीद। ये उम्मूमन मुर्शिद को ख्याल रहता है कि मुरीद क्या कर रहा है। तो उन्होंने कुछ पी रहे थे, दूध, कोई शरबत या पानी। ख्याल आ गया, अरे उन्हें कैसा है देखना। देखे तो उन्हें नजर आया, क्या में नजर आया? वो गिलास में, प्याली में, जो भी था उसमें नजर आया खेती बाड़ी का काम कर रहा है। ऐसा हो सकता है? ऐसा होता क्या? बोलो, ऐसा हो सकता? आज से अगर 50 साल पहले कोई बोलता तो मानते थे, अंग्रेज बाबा बोले तो मांग नहीं, इन्हों बोले तो मानते, मानते, मान रही, मानना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। अल्लाह जलवे दिखाता है। तुम मेरे वली की नहीं माने ना, अंग्रेज की मानो। मेरे दोस्त की नहीं मानते तो मेरे दुश्मन की मानो। अगर अपने बाप को बाप नहीं बोलेंगे, पुलिस वाला अपने को तुम्हारा बाप मनवाएगा यार। वो देखे पानी, वो खेत में काम कर रहा है। गांव में एक मड़िया बनाते ना, मालूम है ना, तो हजरत क्या करे, ऐसा इशारा कर रहे तो मड़ी टूट गई। ये कैसा होता? जरा यूं करो, फोन खत्म हो जाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। टच स्क्रीन, वाह, ये अंग्रेज कर सकता है, इन्हों नहीं कर सकते। वो कैसा कर सकता है वो भी बता देता हूँ। सुभान अल्लाह। मड़ी टूट गई, उन्हें बनाया, फिर करे, फिर टूट गई, फिर बनाया, फिर करे, फिर टूट गई, फिर बनाया। उन्हें बोला somebody is calling me, कोई है जो मेरी तवज्जो को अपनी तरफ खींचना चाहता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसा आप नमाज के बाद चेक करे ना, नमाज कबूल हुई नहीं हुई, इफ्तार के बाद चेक करे रोजा कबूल हुआ नहीं हुआ, वैसे उन्हें चेक करा, उन्हें भी तवज्जो लगाया वहां से। बोले आहा, हजरत क़िबला मुतवज्जे हैं, तो वहां से क्या था उसका नहीं, पानी मिट्टी, उन्हें खत्मों पे मिट्टी फेंका, ये बताने के लिए आई एम ऑल राइट। आपके पास से जाने से तरक्की हो गई, वहां की मिट्टी यहाँ की गिरी। सुभान अल्लाह। कैसा होता? गजा वाले से पूछो, फलस्तीन वाले से पूछो, इसराइल कहां से हमले कर रहा है, अमेरिका कहां से हमले कर रहा है, दुनिया वाला कर सकता है, ये आता कहां से है? ये करामतें कहां से आती हैं? कुरान की एक आयत है, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ हबीब आप उनसे फरमा दीजिए कि वो अगर अल्लाह से, तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो उनसे करो फत्तबिऊनी, कि वो आपकी इत्तिबा करें।
क्या होगा अगर आपकी इत्तेबा करेंगे? मेरे से मोहब्बत करने की एक निशानी है, वो आपको फॉलो करना, आपकी इत्तेबा करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उससे क्या होगा? वो तो फत्तबिऊनी, तुम मेरी इत्तेबा करो, युहब्बुकुमुल्लाह। अब रुक जाओ। तो अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। अभी आपको समझ में आती है बात, समझो। एक होता मुहिब, मालूम, चाहने वाला। एक होता महबूब, जिसको चाहा जाता है। आज अहद कर लो, हाथ उठाए बगैर अहद कर लो, लड़के लड़कियां सच्चे दिल से वली के दरबार में बैठे हुए हैं। नो जीएफ नो बीएफ। दिल में हाथ न उठाना, दिल में वादा कर लो, नो जीएफ नो बीएफ, नो जीएफ नो बीएफ, नो जीएफ नो बीएफ। खत्म कर दो। जीएफ बीएफ खुदा रसूल के हुक्म के खिलाफ है। लानतें बरसती हैं, मुसीबतें आती हैं, दूर कर दो। एक बात याद आई, बात में बात याद आती है, थोड़ी नेकी करने में तकलीफ है। नेकी करने में, नेकी करने में नेकी रह जाएगी, तकलीफ चले जाएगी। नेकी रह जाएगी, तकलीफ। नेकी का दुनिया में है, नेकी कहाँ रहेंगी? खबर में भी आएगी। नेकी कहाँ आएंगी? हशर में भी आएगी। वो नेकी आपको ले जाएगी जन्नत। सही है? गुनाह में मजा है। क्या है बोलो? गुनाह में मजा है। गुनाह में मजा है। मजा गया, गुनाह रह गया। दुनिया में भी गुनाह रह गया, खबर में भी गुनाह रह गया, हशर में भी गुनाह रह गया, दोज़ख को ले गया। अब आप बताइए, सबसे बड़ी उम्र है तो कितनी होंगी? बताओ। 100 साल बस है? 100 साल की उम्र है। अच्छा, खबर में जाने के बाद से लेकर जन्नत में जाने तक के कितने बरस है? बताइए, कितने बरस है? मेरे एक सवाल का जवाब दो, कोई अगर देता है। सफर लंबा है तो तोशा थोड़ा होना, बड़ा होना? बड़ा होना। पक्का? पक्का। हाँ? सफर लंबा है, लंबा है, तोशा बड़ा होना नहीं बड़ा होना? होना। तो हमारा आखिरत का सफर छोटा है, लंबा है? लंबा है। तोशा कितना होना? तो सभी बड़ा होना। देख लिए, 5 वक्त की नमाज है? कहाँ है? तुम्हारा पढ़ने वाले कहाँ है? जोहर असर बिसर गई, मगरिब भेज देते। जोहर असर बिसर गई। बोलो बोलो। जोहर असर बिसर गई, और असर बिसर गई, मगरिब तो याद नहीं, ईशा को नींद में था, फजर को तो उठा ही नहीं। बताइए, अल्लाह के पास मकबूल होने की निशानी है ये? अल्लाह बोला, अगर ये मेरे से मोहब्बत का दावा करते हैं, इन्हों आपको फॉलो करना। अगर इन्हों आपको फॉलो करेंगे तो मैं इनको अपना महबूब बनाऊंगा। महबूब क्या होता मालूम है आपको? मैं क्या समझाऊं? आज की दुनिया में, मोबाइल की दुनिया में महबूब समझाऊं? इजाजत दिए तो बोलते हैं। बीएफ वही करता है जो जीएफ बोल दिया। बीएफ वही करता है जो जीएफ बोली, क्योंकि जीएफ उसकी महबूबा है और बीएफ उसका मुहिब है। यानी महबूब जो चाहता है, चाहने वाला वही करता है। महबूब
शरीफ पढ़िए अल्लाह सय्यदना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफदल सलावत। महबूब जो चाहता है मुहिब वही करता है बात। तो अल्लाह बोला वो मेरा महबूब है, अब इन्हें जो चाहेगा मैं कर दूंगा। क्या मतलब? इन्हें उस अपने हाथ से जो चाहेगा मैं उसके हाथ से वो करा दूंगा। इन्हें अपनी आंख से जो देखना चाहेगा वो दिखा दूंगा। अपने पैर से जहाँ चाहना चाहेगा वहां पर पहुंचा दूंगा। वो लड़का, वो मुरीद वहां से मिट्टी हजरत के कदमों में फेंकना चाहता था, पहुंचा दिया। ये करामतें यहाँ से आती हैं। एक बुजुर्ग है कमाल शाह और एक जमाल शाह, दो बुजुर्ग थे। हमारे पास का एक प्रॉब्लम है, गांव में तो ज्यादा रहता है वो अमूमन, लड़की हुई कि परेशान है। लड़की वाले उनके चेहरों से हवाएं उड़ने लगती हैं। तो मियाँ बोला अगर तेरे को लड़की होगी इस बार तो तेरे को तलाक दे दूंगा। अगर तेरे को लड़की होगी इस बार तो तलाक दे दूंगा। सब में पहले एक मैडम याद रख लो, मियाँ गुस्से में है, खामोश बैठे, खामोश, छोटे मोटे बच्चों देख लेंगे, मौके पे चौका लगा। इस वक्त खामोश बैठे, कुछ भी मत बोलो, ठंडे हो जाओ बीबी के आलमों के वैसा। हजरत क़िबला भी को बोल रहा हूं मैं, हजरत क़िबला बीवी गरम है, खामोश बैठ जाओ, खामोश बैठ जाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मौके पे देखेंगे, मौका कब आता? पहली क्या है? नहीं नहीं, चेहरा सूखा रखना, पहचानी पेपर, गुस्सा नहीं, मारना नहीं, गाली नहीं करूंगी, बस वो चंद चीजें रहती याद रखो। मैं बारहा बोलता हूँ, गुस्से में मुझे गुस्से में तलाक निकल गई। अरे गुस्से में जितने गालियां दे सकते हैं बोलो, तलाक के सिवा जो बोलना है बोलो। क्या बोलो? बोले मुझा जो बोलते, भैंस, डोंकी, बफेलो, हॉर्सनी। अरे हॉर्स का मोहम्मद जी आपको क्या बोल, जो चाहे बोलो। तो एक आके बोला तकरीर के बाद, मुसा आप जो चाहे बोलो। बोले फिर आने देती, आने देती, कई दुनिया नहीं देती। उसकी मनपसंद चीज लेके जाओ ना, जाते हो क्या है? गुलाब जामुन, चाय बनाऊं क्या? चाय बनाऊं क्या? पूछती। ये गुस्सा उतारने की दवा है, तलाक का कोई इलाज नहीं। गाली का इलाज है, तलाक का इलाज नहीं, याद रखो। एक साहब जो है बोले कभी भी आपके घर से लड़ने की आवाज नहीं है। बोले हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लिए हैं। क्या कॉम्प्रोमाइज कर लिए? अगर उनको गुस्सा आया तो मैं छत पे चढ़ जाता हूँ, अगर मेरे को गुस्सा आया तो मैं छत पे चढ़ जाता हूँ। अच्छा ऐसा है, कब से चल रहा है? आज 10 साल से छत पे हूँ। जिंदगी चल रही है, बच्चे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बच्चे भी है। जहन में रख लो, ये जोड़ी टूटने नहीं देना। और माफी के साथ मैं औरतों से एक खास बात बोलूंगा, माफी के साथ नहीं बोलना है, बोल दे रहा हूँ। मेरे को अमीरिया में जो बोलते मेरे को मालूम है, महबूबनगर के बाद मुकर्रिर हज़रात भी है, शेखुल जामिया होने के नाते ऐसा तकरीरें करते। क्या मेरा काम है? सुधार वाली बात करना, इस्लाह करना, वलवला अंगेज तकरीरें ऐसा करके चिल्ला के अल्लाह के चले गया। मैं कुछ समझ भी नहीं आया तो कहता। एक बात, मेरे सवाल का जवाब कोई लड़का या लड़की देना, अगर दे सकती है तो।
सब में पहले दुनिया में कौन आया? अम्मा आया, अम्मा आई, बाबा आया, कौन आया? आदम अलैहिस्सलाम, माँ हवा अलैहिस्सलाम। ऐसा हाथ उठाओ। मैं अम्मा आई के बाबा आया? आदम अलैहिस्सलाम, एक बोलो, एक उठ के बोलो, दम है तो बोलो। कौन आदम आया? अलैहिस्सलाम, आदम अलैहिस्सलाम। अम्मा आई के बाबा आया, पूछा। सबके तो वालिद आदम अलैहिस्सलाम। मेरे सब, ये देखो, आप लड़का है लड़की है? हेलो मनी, आप लड़का है लड़की है? हाँ, ऐसे ही बोलो। अम्मा आई, बाबा आया, कौन आया सब में पहले? बैठ जाओ। और कोई नाम नहीं पूछो। मैं बाबा अम्मा दोनों भी आए। अच्छा, कोई एक उठो, छोटा बच्चा कोई बुला जान रहे जान नको। कौन है? सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ, इधर आ। जान दे भाई, सुनो बाबा, आप उठो, इधर आओ जी, खड़े हो। क्या उम्र है आपकी? आपकी एज क्या है? 26 साल है ना? बड़े अब बोलता हूँ, आपने अब बोलता हूँ, समझ में आता है। क्या नाम है बाबा? खाजा। मैं खाजा साहब से पूछा आपकी उम्र क्या है, तो खाजा भाई बोले 26 साल। बाबा की उम्र क्या है? 26 साल है। मतलब वो कैसा? मैं पैदा हुआ तो बाप बनाना। सही बोला। तो आदम पहले आए, बाबा पहले आए? जवाब ही नहीं आती। सब में पहले दुनिया में अगर कोई आए हैं तो मियाँ बीवी, हमारे अम्मा ना बाबा। अम्मा बाबा कब बने? बाद में बने। पहले कौन है? मियाँ बीवी। पहले मियाँ बीवी। अच्छा, ये बताइए, जन्नत में औरत के साथ कौन रहेगा? उनका शौहर। और मर्द के साथ या सास? समझे? तो दुनिया में आए भी मियाँ बीवी और वहां पर भी रहेंगे मियाँ बीवी। बीच में आप फैंसी बन के मत काटो। इनको जोड़ने के काम करो, इनको तोड़ने के काम मत करो। जहन में रखो, शैतान अपने चेलों को बुलाता है। आज की कार्रवाई सुना, क्या क्या करा, मैं ये करा, मैं वो करा, मैं हटा 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 हटा। एक तो बोलेगा क्या करा, आज मियाँ बीवी में लड़ा दे और तलाक करा। वेरी गुड, ये है असल मेरा चेला। यहां खुश होता हूं। आपको उसको शिकस्त देना है, मर्द हो के औरत, शिकस्त देना है, जहन में रख लो। और एक आम बीमारी है, औरत आए आके बोले मौलाना क्या करना, बोलो मौलाना क्या हुआ, हमारे मियाँ। मौलाना क्या करे, मैं बोलता हूँ क्या करे। मौलाना बैठ जाओ, खामोश, पानी पी लो, पी ली। जीएफ से बातें कर रहे हो, देर देर तक बातें कर रहे हो। मौलाना तुम्हारे को उसका मोबाइल चेक करने कौन बोला? दूसरों की प्राइवेट लाइफ में आप दखल नहीं देना। कायदा है, जिसे बिगाड़े मौला उसे क्या सुधारे सैफुद्दौला। आप जीएस माने न, आप एक कोई बच्ची उठेगी, कोई बच्ची, आप बच्ची है ना, अम्मा इधर इधर यहाँ। और ना ये जीएस किसको बोलते, पूछ रहे हो? बोल किसको बोल माँ। जीएस बोले तो
दादरा नहीं जी, जीएफ किसको बोलते हैं? आप मालूम है नहीं मालूम है? शरीफ है जीएफ के बारे में मालूम? फुल फॉर्म क्या है जीएफ का? बीएफ का फुल फॉर्म नहीं मालूम? कौन है? अगर उन्हें नहीं मालूम बोली तो जरूर 600 रुपए। वेरी गुड, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जीएफ बोले तो गर्लफ्रेंड, बीएफ बोले तो बॉयफ्रेंड। मैं सब बोलो सब समझते, बहुत शरीफ लोग हैं। अल्लाह आप पे करम फरमा, काम फरमा, आपकी दुनिया को कामयाब बनाए, यहाँ पर भी खुश रहें, वहाँ पर भी खुश रहें। बहरहाल मेरे कहने का मतलब क्या है, समझ में आ रहा है आपको? ख्याल रखो, क्या क्या बोला था एक बैगा दे क्या माँ बाप, सास ससुर, अब आपको सुना देता हूँ। अगर घर का दामाद अपनी बेटी के पावा दबाया तो अल्लाह करे हरे तू ऐसा दामाद मिले। अब हुआ क्या, फिर पलट के देखे तो हमारा बेटा हमारी बहू के पावा दबाए, का गुलाम हमारे दखन में क्या बोलते मालूम है? अपनी डाई में अंडे बच्चे, दूसरों की डाई में फोड़ा। याद रख लो वो भी किसी की बेटी है, याद रख लो वो भी किसी का बेटा है। आप बीच में मत जाओ। मैं हमारे दोनों भाइयों को बोल दिया हूँ, तुम दोनों की लड़ाई बंद कमरे में अंदर, बाहर नहीं। तुम्हारी हंडी अलग, तुम्हारा बर्तन अलग, तुम्हारा पकवान अलग। अगर तुमको हमसे लगाव है तो हम नीचे खा रही, तोशा लेके नीचे आ जाओ और अपना खाना सालन हमारे साथ शेयर करो। हम अपना खाना सालन शेयर करते, मिल के खाओ, मिल के जाओ, नो प्रॉब्लम। तो एक बोला मुसाफ आप ऐसा करे, हाँ वही बोलो मुसाफ, 10-12 लोगों के बर्तना एक का साथ होंगी। ख्याल करो, आप चीज घरों को जन्नत नुमा बनाओ, जन्नत नुमा बनाओ। अच्छे घरों में शादियां करो और अपनी बात बाहर जाने मत दो। मियाँ बीवी की बात घर में, ना लड़की वाले अपने घर में सुनाना, ना लड़के वाले अपने घर में सुनाना। अपने बात यहीं पर, आपकी इज्जत आपके हाथ में। तो यह औलिया अल्लाह का दरबार है, तो यहाँ आए हैं तो कुछ लेके जाओ। कुछ नहीं मिलता मत समझो। मैं आपको बताया ना, हमारे गुनाहों की वजह से हमारे आंखों पे पर्दा है, वरना रहमतों का नुज़ूल बराबर हो रहा है। हमको नजर नहीं आ रहा है, नजर नहीं आता। अगर हराम का खाना छोड़ दें, बली बनने के लिए 2 हक। मैं आपको एक वाक़या अभी सुनाया और एक सुना देता हूँ, बात खत्म कर देता हूँ। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून, औलिया मुत्तकी ही होते हैं। ये मुत्तकी क्या होते हैं सुन लीजिए आप। एक साहब थे अल्लाह वाले, बुजुर्ग आलिम, उन्होंने जब भी खाते वो खमीर की रोटी खाते, तंदूर की रोटी खमीर की होती है ना, वो रोटी मुरीदीन आके बोले सरकार आज खमीर नहीं है, तो बोले मियाँ बगैर खमीर के खिला दो, मगर रोटी खमीर की बन के आई है। उन्हें बोले अरे रोटी में खमीर नहीं है, खमीर की रोटी नहीं बनती। बोले अब कैसे आ गई? तो बोले नहीं, वो बगदाद के जो फौजिया है उनसे हम थोड़ा खमीर आपके हाथ ला लिए, शायद बेटा काम करता था। बोले ना ना ना, हुकूमत खमीर उनके लिए दिए, हमारे लिए नहीं, लिहाजा मैं नहीं खा सकता, मेरे लिए ना जाएगा। तो बोले क्या करना सरकार? वो नान भाई जो नान बनाया ना, उसको बोलो
मगर मेरा केस सुना के दे रहा हूं। उन्हें ले आके बोला हजरत ये केस है। हजरत ने कहा तू खाता क्या? बोले उन्होंने कहा तो मैं भी नहीं खाता। देख रहे मैडम भाई साहब, इसी वजह से बोलते कूनू मा सादिकीन, सच्चों के साथ हो जाओ, इनकी सोबतों में रहेंगे, अच्छे लोगों की सोबत में रहेंगे, आप भी अच्छे हो जाएंगे। उन्हें नहीं खाया तो नान भाई तंदूर की रोटी कितने में मिलती? 10-15 रुपए। कितने में मिलती? 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये। एक 20 रुपये की रोटी उसको मुफ्त में पड़ी थी ना, फिर क्यों नहीं दिया? उन्हें बोला ना, वो पलट के आ गया। आगे बोला सरकार उन्हें भी नहीं खा रहा है, उतने में अल्लाह के नाम पे कुछ दियो बाबा बोल के फकीर आए। बोले मियाँ उसको दे दो। किसको? फकीर को दे दो, मगर मेरा और नान भाई का केस सुना के देना, अमानत है। हमारे पास क्या होता मानो आपका नाम? अजीज माधूम, मगर मौजूद है ना? बहरहाल वो लेके जाके, अब मैं केस जो सुना रहा था, वो बच्ची को 100 रुपये दिया ना। हाँ वो अगर जाली नोट हुई थी तो क्या करती थी बच्ची? नहीं, उन्हें नहीं करती थी, उन्हें वो भी बरकत बोल के रख लेती। अच्छे लोग आए। तो ये बच्ची क्या करी, लेके जाके इसकी छोटी बहन 50 रुपये दी, एक बिस्किट का पैकेट ले दी। उन्हें क्या करा, 5 रुपये का बिस्किट का पैकेट था। पाले जी 5 रुपये में है, 2 रुपये में है? 5 रुपए 5 रुपये में। कीमत बड़ी कभी इसकी? बड़ी नहीं बड़ी, 2 रुपये 5 रुपये बड़ी कीमत नहीं। कीमत बड़ी क्या? क्यों नहीं बड़ी? उन्हें वजन कब कर दिया? चालू लोग आए वो, हमारे को कारोबार नहीं आता, उनको आता। मैं चलते चलते बता देता हूँ। एक हमारे मातूम साहब जैसे ताजिर और एक मारवाड़ी। मातूम साहब क्या करे, चावल तोड़ रही, ये उठा के डाले, यूं हो गया 2 किलो था, यूं बढ़ गया, तो थोड़ा निकालते 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 लेवल हो गया। ठीक है ना, बराबर दे दिए। मारवाड़ी क्या करा, डाला चावल, अभी इन्हें नीचे है, और डाला और डाला और डाला और डाला और डाला, लेवल हुआ। फिर थोड़ा डाला, पहले वाला निकाला, इन्हें डाला, यहाँ पर गिराक हो जाता, उसका नहीं जाता। ये है ट्रिक्स तिजारत के। इस वजह से तिजारत करने से पहले जो तिजारत कर रहे हैं, 1-2 साल वहां पर काम करो। वहां पर एक होटल है शाहबाज साहब, उसके सामने कई होटल आए, बंद हो गए। तो एक साहब बोले, उन्हें सुबह गाड़ता हूँ साहब बौचे खाने के नीचे। बोला आप हट्टी गाड़ो, घोड़ा गाड़ो, असर है, नाचना नहीं आया तो अंगन चढ़ा गया, चलाना नहीं आया, असर है। बाहर से 10 लाख 15 लाख 20 लाख कमा के लाए, तजुर्बा करे बगैर होटल खोल दिए, क्या होता पूछिए? कैसा होता? चाय वाला चखमा देता। चाय में असल किरदार किसका है? दूध का। उन्हें क्या करता, आप इतना दूध रखे ना, 1 गिलास दूध पी के 1 गिलास पानी मिलाता। आपको तजुर्बा नहीं है ना, इस वजह से दूध वाले, चाय के हंडे वाले को अपने नजरों के सामने रखता हूँ। और बहुत सारे काम आए, खैर ये बोलना नहीं है। हाँ नहीं अभी बोला, अभी सुना। वो होटल, वो बच्ची गई बिस्किट लेने, 2 मिनट में खत्म। बिस्किट लेने गई, 50 रुपये दी। उन्हें देना कितने वापिस? 50 दिया, कितने देना वापिस? 45। बजाय 45 के 95 दिया।
95 दिए तो इन्हें बोली है लग गए बोल के सीधा कि ये बच्ची करने बोली बहन 50 रुपये दिए तो 95 वापिस करा। गलत, बेईमानी। हिंदू हो कि मुस्लिम हो, सिख हो कि ईसाई हो, फ्रॉड करना गलत है। जाके 50 रुपये वापिस करके आ जा, वापिस करके आएगा। अकलमंदी उन्हें समझी थी पहले वाली, बड़ी वाली बोली अकलमंदी नहीं है, बेईमानी है। तो वो ऐसा कर सकता था उन्हें, हजरत बोल सकते थे बगैर बोले के दे दो। फकीर को क्या बोला, हर चाय दरगर्जित जाम हो या कभी, मगर होने वाला मैं भी नहीं खाता। अरे बोले सरकार क्या करना, तवज्जो से सुनिए, सरकार क्या करना। बोले क्या करते, पानी में डाल दो। बोले पानी में डाल दिए, बात आई गई। खाना खा रही, दस्तरखान चुना हुआ है, मछली आई जबरदस्त, हजरत मछली को हटा दी। बोले सरकार आप मछली पसंद से खाते थे ना, खाया करता था, अब क्यों छोड़ दिए। वो रोटी खाई भी रही तो ये है तकवा, ये है तकवा। अब आप बताइए, YouTube देखना तकवा है, गैर मर्द को देखना। गौसे आदम का सुनिए वाकया, मगर फिर भी हम हैं कि वाह, और मर्दों औरतों को देख रही, औरतें मर्दों को देख रही। ये क्या है, बदलो, अपने आप को बदलो, सुधारो, फिर देखो दुनिया कैसे महकती है, आपके घरों में बरकत आती है। जाते जाते एक बात सुना देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिब्राइल बातचीत कर, जिब्राइल से वादा लिए कल आएंगे, हो कल आई, जिब्राइल नहीं आए। बोले अभी तक आने का वादा करे थे, नहीं आए। बोल के बाहर निकले, सुनिए गौर से, बाहर निकले तो जिब्राइल बाहर कर रहे हैं, जिब्राइल तुम आते, बोले नहीं आए। हो या रसूल अल्लाह, नहीं आ सकता। क्यों, आपके पलंग के नीचे, पलंग जो भी था, कुत्ते का बच्चा है, इस वजह से नहीं आया। छोटे बच्चे होते हैं ना, कभी खेलते खेलते ला लेते, वैसे ला लिए थे। तो हुजूर गए, वो कुत्ते के बच्चे को हटाए, उसके बाला साफ करे, पूरी तरह पहुंचने के बाद जिब्राइल आए। अगर कुत्ते का बाल भी हुआ तो रहमत के फरिश्ते नहीं आते, मौत के फरिश्ते आते, रहमत के फरिश्ते नहीं आते, ज़हन में रख लो। नंबर 2, जहां नापाक आदमी रहता है, औरत रहती है, नहाने की जरूरत है, मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं है, मजबूरी नहीं, नहा सकता है, नहा नहीं रहा है, वहां भी अल्लाह की रहमत नहीं आती। अब बहुत अहम बात है, तीसरी वो जगह जहां तस्वीर हो। हमारे घरों में तस्वीर है क्या, बोलो मासूम भाई, नहीं है, टीवी नहीं है, नहीं, टीवी पूजा में टीवी है, टीवी को म्यूट कर सकते हैं, बीवी को नहीं। टीवी को चेंज कर सकते हैं, बीवी को नहीं। टीवी में तस्वीर है, फिर रहमत के फरिश्ते आएंगे, कितना भी कमा लो, कितना भी कमा लो। और ये जो मोबाइल की लानत है ना, पहले फोन था, आखिरी मरहले में आ रहा हूँ, एक फोन लैंडलाइन था तो पूरा फैमिली घेरे हुए रहते। आज खाने पे मोबाइल देखते हुए खा रहा है, मोबाइल देखते हुए खा लिए, जवान भी, बुढ़ा भी, बच्चा भी, बूढ़ा भी। मियाँ का पारा चढ़ गया, कैसा सालन बनाई, ना नमक ना मिर्ची, खाली पानी दिख रहा है। जरा मोबाइल हटा के देखो, कैमरे डुबा के खाने में। आप ये पहले छोड़ो, ये तमाम चीजें छोड़ो, खुदा रसूल के हो जाओ। मैं जैसा बोला, ये मोबाइल की जगह कुरान आ जाए, लड़कियों की खिदमत जगमगाएंगी। हाँ,
अच्छी एक चीज़ याद दिलाए। मेरे तकरीबन मैं मौलवी आलिम फादिल में कुछ था, मैं एक घर में गया। घर में जाने के बाद देखा कुरान की तिलावत नहीं हो रही, नमाज नहीं पढ़ रही। मैं बोला बीबी आपके पास नमाज पढ़ने का रिवाज नहीं है ना? आई मौलाना सुहागन नमाज पढ़ती क्या? मैं क्या सुहागन कुरान पढ़ती क्या? सुहागन नमाज पढ़ती क्या? कुरान भरे घर में पढ़ती क्या? मला कहाँ से? मरे तो घर में पढ़ती। मला अच्छा, अल्लाह ने रंगोट डाल के उठा लिया तो क्या बात? मरे तो मेरा कलाम पढ़ते ना, ले मारता हूँ। तब आकर एक एक सब पकाते आता, तोबा तोबा करके कुरान पढ़ना शुरू कर दी, नमाज पढ़ना शुरू कर दी। कुरान पढ़ना है। उन्होंने छेड़े साहब, मैं खत्म कर रहा था, उन्होंने छेड़े समझे। कुरान जब नाजिल हो रहा था तो फरिश्ते बोले मौला हमारे को कुरान की तिलावत की इजाज़त दी जाए। अल्लाह ताला बोला ना, नहीं, कुरान पढ़ के हम उसका मज़ा लेना चाह रहे। अल्लाह बोला नहीं, जैसे डबल के मीठे का मज़ा है, अभी हम शीरखुरमा पी के आए उसका मज़ा है, बिरयानी खाए फिरोज खान साहब उसका मज़ा है ना? हर चीज़ का मज़ा है। चाय का भी मज़ा रहता जाते वक्त नहीं है, हर एक का मज़ा रहता है ना? तो अल्लाह ताला से जिब्राइल बोले कुरान पढ़े तो एक मज़ा आता है, वो मज़ा की इजाज़त दी जाए। बोला ना 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 ना, नहीं मौला बहुत रिक्वेस्ट करे तो अल्लाह बोला एक काम करना, जब उम्मत मोहम्मदिया कुरान की तिलावत करे तो उनकी जबान पे अपनी जबान रख देना, तुम्हारे को वो मज़ा आ जाएगा। तो हम जब तिलावत करते हैं तो हमारी जबान पे फरिश्ते अपनी जबान रखते हैं। आखिरी बात बोलते आता हूँ, आगे बढ़ते आता हूँ। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है आसमान वाले को पता लग जाता कि यहाँ कुरान पढ़ा जा रहा है। समझे? जैसा टावर से कनेक्शन रहता ना, कुरान से वहाँ कनेक्शन है। फिर एक आखिरी बात, आप अर्श पे हैं कि फर्श पे हैं? फर्श पे है। जब एक नमाज सही तौर पे अदा कर ली जाए, एक नमाज नहीं बहक जा रहा हूँ तो बोल रहा, ये नमाज का याद दिला अर्श फर्ज बोल के। 2-3 लड़कियां औरतें, अरे वाह, उन्हें दवाखाने में कैसी है कि ऑटो वाला बोला मैडम आइए बैठी, छोड़ देता हूँ। क्या हुआ बा? यहाँ दवाखाना कहाँ है? यहाँ कहाँ है दवाखाना? आप ये बोले तो तबीयत खराब है, उन्हें दवाखाने में आईसीयू में क्या होगा? तुम्हारी अकल पे मट्टी पड़ो। तुम बोले ना, हाँ बोले आईसीयू में है, कौन नहीं है बोला? तुम्हारे बातों में जाता हम पीवीसी में छूटेगा उसकी बात कर रहे। हमारे पास अजब नहीं कि नमाज भी यूं देख ले, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नमाज तो टूटी नहीं ना। अब सुनिए, अगर सही नमाज अदा कर ली जाए, ये नूर की शक्ल बनकर आसमान पे जाती है। आसमान पे फरिश्ते पूछते कौन? तो बोले फलां की नमाज हो, फलां की नमाज हो। आसमान दरवाजे खोल देता, होते 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 अल्लाह ताला का नहीं जाती है। अल्लाह का नहीं जाने के बाद अल्लाह पूछता है कौन? मैं फलां की नमाज हूँ। क्या चाहती है? मैं चाहती हूँ कि मैं उसके हक में सिफारिश कर रही हूँ, उसके काम बन जाए तो जाते हुए सिफारिश खूब हो। एक आप सही नमाज पढ़े तो क्या होता है देखिए, और बहुत सारे वाक़े हैं। इंशाअल्लाह ताला फिर कभी मुलाकात हुई या मोहसिन साहब से आप सुन लीजिए। ममा अलैना इल्लल